امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ، لقب امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ نیزر محدثین اکرام و علماء اسلام سے یہ لقب بھی منقول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جف عربی کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا مغیرہ نے یمن جعفی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، جو اس وقت بخارا کے حاکم تھے، پھر بخارا ہی میں سکونیت پذیر ہو گئے۔ چنانچہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جو کسی خاص شخص کے ہاتھوں سے اسلام قبول کرتا اسی سے نسبت متعلق ہو جاتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 عیسوی 13 شوال نماز جمعہ شہر بخارا جلوہ فرمائے عالم ہوئے۔ ایک طرف شوال المکرم ہے جو اشہر حرم کا پہلا مہینہ، اور دوسری طرف جمعہ ہے جو دوسرے دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش بھی ممتاز خصوصیت رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لاغر جسم اور میانہ قد و قامت تھے، صفائی پسند اور انتہائی سادہ، داڑھی مبارک گنجان تھی، چہرہ انور کو دیکھتے ہی انسانی نگاہ عقیدت و محبت سے جھک جاتی تھی، سخاوت خاندانی ورثہ میں تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری والدہ محترمہ پر آ گئی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی کسی عارضہ کی وجہ سے نابینا ہو گئے، جس سے والدہ کو غیر معمولی صدمہ ہوا۔ شوہر یعنی حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا سانحہ کہ ادھر لگتے جگر کی بینائی چلی گئی، بہت علاج کروایا لیکن بینائی سے محروم رہی، بہت علاج کروایا لیکن بہنائی سے محروم رہے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے رو رو کر بارگاہ الہی میں بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کی، اور ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فرما رہے تھے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور تیرے لختے جگر کو پھر سے نور بصیرت سے نواز دیا گیا ہے۔ چنانچہ صبح کو دیکھا تو امام رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں درست تھی، بینائی واپس آ گئی، قوت بینائی ایسی ہوئی کہ تاریخ الکبریہ کا مسودہ آپ امام رحمۃ اللہ علیہ نے چاندنی رات میں لکھا۔ امام رحمۃ اللہ علیہ 5 سال کی عمر میں مکتب کے سپرد کر دیے گئے اور عمر کے 10ویں سال میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فربری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے ابو جعفر بن محمد حاتم ورق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود امام رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام تک کیسے پہنچے؟ جواب میں فرمایا کہ میں ابھی مکتب ہی میں تھا کہ میرے دل میں حدیثوں کا شوق پیدا ہو گیا، حالانکہ میری عمر اس وقت 10 برس یا اس سے کم تھی۔ چنانچہ مکتب کے زمانے میں متفرق طور پر جہاں کہیں سے کوئی حدیث ملتی تھی تو فوراً حفظ کر لیتا تھا۔ کم سنی سے ہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تخلیق ہی علم حدیث کے لیے کی گئی ہے۔ چنانچہ 10 سال کی عمر میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو کر درس حدیث کے مختلف حلقوں میں شامل ہونے لگے۔ 205 عیسوی میں یعنی 11 سال کی عمر میں ایک روز محدث دخلی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں گئے، جن کا حلقہ اس وقت سب سے بڑا تھا۔ محدث دخلی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے حدیث کی سند اس طرح بیان کی، حدثنا سفیان بن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کونے سے عرض کیا کہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابو زبیر کی ملاقات ابراہیم سے ثابت نہیں ہے۔ محدث دخلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طفل مکتب سمجھ کر ڈانٹ دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس بیاض موجود ہو تو مراجعت فرما لیں۔ بات منقول تھی۔ محدث دخلی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، بیاض دیکھنے پر معلوم ہوا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کی بات درست ہے۔ پھر محدث دخلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لڑکے اصل سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابو زبیر بن عادی بن ابراہیم۔ محدث دخلی رحمۃ اللہ علیہ نے تصدیق کی۔ پھر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مقبول نظر ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت کا پہلا دن تھا، اسی دن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا شروع ہو گیا۔ علامہ عسقلانی نے نقل کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں ہی 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ آشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو لکھتے تھے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ نہ لکھتے تھے۔ ہم لوگ تعین کے طور پر کہا کرتے تھے کل اگر تم کچھ نہ لکھتے تو خواہ مخواہ تکلیف کیوں کرتے ہو؟ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آ گیا اور کہا کہ تم نے بہت کہہ لیا، لاؤ دکھاؤ تم نے کیا لکھا ہے۔
है हमने ज़ब्त करदा तहरीरात दिखाई जो 15,000 से कुछ ज्यादा थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम हदीसों को अपने हिफ्ज़ से फरमा कर सुना दिया, यहाँ तक कि हमने अपनी नुशिस्ता तहरीरों की इनकी हिफ्ज़ से इस्लाह की। बगदाद शरीफ उलमा इस्लामिया का मरकज था। हदीस के बाकसरत शाइख वहाँ मौजूद थे। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद पहुँचे तो उनका इम्तिहान लिया गया। वहाँ के उलमा ने 100 हदीसों को मुंतखब किया। पहले ही 10-10 आदमियों को 10-10 हदीसें याद करवा दी। इस तरह याद करवाई कि मतन और सनद मुनकलब कर दिए, यानी एक हदीस की सनद दूसरी हदीस के मतन के साथ जोड़ दिया। इमाम रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ लाए और मजलिस मुनक्कद हुई, उन 10 आदमियों ने गलत हदीसें बारी बारी पढ़ना शुरू की। हर हदीस पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते गए ला अरफा यानी गलत। अवाम में तो कुछ लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, लेकिन उलमा और मुहक्किकीन ने अंदाजा कर लिया कि कामल फन है। जब हर एक ने तमाम हदीसों को सुना दिया तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हर एक को नंबर वार बुलाया और फरमाया कि तुमने पहली रिवायत इस तरह पढ़ी है, ये गलत है और इस तरह सही है। इस तरह तरबीतों वार 10 की इस्लाह की। अब सब पर वाजिया हो गया कि ये माहिर फन है। हाफिज बिन हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताज्जुब इस बात पर नहीं है कि उन्होंने गलत की इस्लाह की, वो तो हाफिज हदीस थे, उनका तो काम ही यही था। ताज्जुब तो हकीकत में इस बात पर है कि गलत हदीसों को एक मर्तबा में सुनकर तरतीब वार महफूज रखा। एक मर्तबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को तालिबे इल्मी के दौरान फाका भी करना पड़ा और दरख्तों के पत्ते और घास भी खाना पड़ी। फाका के वक्त कपड़े भी बेचने पड़े, मगर उनके इस्तकलाल में जरा भी फर्क नहीं आया और सालन तो जिंदगी के अक्सर हिस्से में इस्तेमाल ही नहीं किया। एक मर्तबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हो गए तो उनको मुआलिज को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि ये कादराने पादरियों का मालूम होता है जो कभी सालन नहीं खाते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तस्दीक की और फरमाया कि मैंने 40 बरस से सालन नहीं खाया। मुआलिज ने सालन तजवीज किया, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उस आराम तलबी को मंजूर नहीं किया, लेकिन इतना मंजूर किया कि रोटी शक्कर के साथ रख कर खाऊंगा। यानी बयान ये करना चाहते थे ऐशो आराम और राहत तलबी में इल्म नहीं मिलता। इल्म की दौलत तो नहायत ही जद्दोजहद और मुशक्कत से मिलती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह इल्म फजल और कमाल में अल्लाह थे, इसी तरह परहेजगार इत्याद भी फरमाते थे। ये भी फरमाया करते थे कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गीबत के मामले में किसी का हाथ मेरे दामन पर नहीं होगा या मेरा दामन किसी के हाथ में ना होगा। इस बात से हम सबको नसीहत और इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिस फजल अजल की अजीम किताब हम पढ़ते हैं, इनसे तो किसी की एक मर्तबा भी गीबत ना हुई और हम दिन रात गीबत में डूबे रहते हैं, तो भला हमें क्या फायदा होगा। एक मर्तबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को दरिया का सफर पेश आया। इमाम रहमतुल्लाह अलैह 1000 शर्फियाँ लेकर बहरी जहाज में सवार हुए। एक शख्स ने अकीदत मंदी का इजहार किया और इतनी नियाज मंदी जाहिर की कि इमाम रहमतुल्लाह अलैह को उस पर इत्माद हो गया। अपने पूरे हालात उसको बता दिए। ये भी बता दिया कि मेरे पास 1000 अशरफियाँ हैं। एक सुबह जब वो मकार उठा तो उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और कहने लगा मेरी 1000 अशरफियों की थैली गायब हो गई। उसके हालो जार पर कश्ती वालों को रहम आ गया। जहाज वालों की तलाशी शुरू कर दी। इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने मौका देखकर चुपके से वो हथेली समंदर में डाल दी, लेकिन जब किसी के पास भी हथेली ना निकली तो कश्ती वालों ने उसे बहुत मलामत किया। जहाज से उतरने के बाद जब वो इमाम रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और पूछता है कि हजरत वो अशरफियाँ कहाँ गई, इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि समंदर में गिरा दी। उसने कहा इतनी बड़ी रकम का जाया। इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस दौलत सकावत पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी वही मेरी असल कमाई है, उसको चंद अशरफियों के इवज बर्बाद नहीं कर सकता था। उस वाक़ये से हमें सबक लेना चाहिए कि हम अपने बेसहा बरसों इल्मो वकार को रुपयों पैसों के इवज बर्बाद ना करें। इमाम रहमतुल्लाह अलैह जब निशापुर से वतन से रवाना हुए और बुखारा वालों को मालूम हुआ तो मुसरत की लहर दौड़ गई और कई मील तक शामियाने और खैमे निस्ब कर दिए गए। पूरे शहर वाले इस्तकबाल के लिए निकले और बड़ी शानो शौकत से इमाम को लेकर शहर आए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारा में दरस हदीस शुरू किया। तशनगान इल्मे हदीस जोगदा जोग शरीके दर्स होने लगे, मगर हासदों ने यहाँ भी इमाम रहमतुल्लाह अलैह का पीछा ना छोड़ा, जिनके मशवरे से खालिद बिन अहमद जली ने इमाम रहमतुल्लाह अलैह के पास दरख्वास्त भेजी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दरबार शाही में आकर मुझे और मेरे साहबजादों को दरस बुखारी शरीफ और तरीक का दर्स दें। लेकिन इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने उसी कासद की जबानी कहला भेजा कि मैं इल्म को सलातीन के दरवाजों पर ले जाकर जलील नहीं करूंगा, जिसे पढ़ना
हो वो मेरे पास आकर बैठे। खालिद बुखारा ने दोबारा कहला भेजा, अगर तशरीफ नहीं ला सकते तो शहजादों के लिए कोई मखसूस वक्त मुतय्यन कर दें ताकि उनके साथ दूसरे लोग शरीक ना हो। इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को भी पसंद नहीं फरमाया और फरमाया कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत के लिए यकसा है, उसकी समाअत से किसी को महरूम नहीं कर सकता। अगर मेरा ये जवाब नागवार हो मेरा दर्स रोक दिया जाए ताकि मैं खुदा के दरबार में अर्जी पेश कर सकूं। उस जवाब से हाकिम बुखारा सख्त नाराज हो गया। हासदों ने हुक्म वक्त के इशारे पर इमाम रहमतुल्लाह अलैह को दीनों अकायद के बारे में मुतहम्मम किया, बदअती होने का इल्जाम लगाया। फिर हाकिम ने बुखारा से निकलने का हुक्म दे दिया। इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई अफसुर्दगी के साथ बद्दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह इस अमीर ने मुझे जलील किया इसी तरह इनको अपनी जिल्लत और अपने अहल की बेइज्जती और जिल्लत दिखा। चुनाचा एक माह भी नहीं गुजरा था, खलीफा अल मुस्लिमीन उस अमीर की वजह से सख्त नाराज होकर उसको माजूल कर दिया। उसकी जगह दूसरा हाकिम भेजा और हुक्म दिया कि माजूल हुक्म का मुंह काला करके गधे पर सवार करके पूरे शहर में उसकी तजलील करो, फिर कैद कर दिया जाए, जहाँ वो इंतहाई जिल्लत और रसवाई से चंद दिन गुजार कर मर गया। हाकिम बुखारा के मुअय्यन हारिस बिन वकार वगैरह मुख्तलिफ बलाओं में मुब्तला होकर हलाक हो गए। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बेलंद पहुँचे, लेकिन इमाम रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक वहाँ भी इख्तलाफ हुआ, इसलिए वहाँ क्या मुनासिब नहीं समझा। इतने में अहले समरकंद ने आप रहमतुल्लाह अलैह को दावत दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूल फरमा ली और समरकंद का भी इरादा फरमा लिया, लेकिन रास्ते में खरतंग था जहाँ पर कुछ अजीज रहते थे। माह मुबारक की वजह से वही क्याम किया। इसी दौरान समरकंद से इतला आई कि यहाँ फजा साजगार नहीं, यहाँ भी लोगों में इख्तलाफ हो गया है। इसलिए इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की, खुदाया मेरे ऊपर जमीन बावजूद वसीयत के तंग हो गई है, इसलिए मुझे अपने पास बुला ले। अहले समरकंद ने तहकीक की तो मालूम हुआ इल्जाम गलत है। फिर मुतफक्का तौर से दावत पेश की। इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने सवारी तलब की। दो आदमियों के सहारे चंद कदम चले थे और फरमाया कि ज़ईफ बढ़ता जा रहा है। फिर कुछ दुआ की और लेट गए। जिस्म अकदस से पसीना निकलना शुरू हो गया और आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी। इस तरह 13 दिन कम 62 साल की जिंदगी गुजार कर शब्बे ईद उल फितर यकम शवाल की रात में इल्म फजल का अजीम आफ्ताब गरूब हो गया, जिसके इल्म फजल की रोशनी से बुखारा, समरकंद, बगदाद और निशापुर के बेशुमार अवामो खवास अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर कर रहे थे। ईद उल फितर के दिन बाद नमाजे ज़ोहर मुकाम खरतंग में उस मुजस्मा नूरी करामत को सुपुर्दे खाक किया। दफन के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक से एक मुद्दत तक खुशबू आती रही। लोग दूर दूर से आकर मिट्टी उठाकर ले जाते थे जिससे गड़ा हो गया था। इस लेत कब्र की हिफाजत के लिए अता किया गया, मगर फिर भी ये सिलसिला जारी रहा और लोग अहाता के बाहर से मिट्टी ले जाने लगे। बिल आखिर मुतल्लकीन में एक बुजुर्ग की दुआ से ये खुशबू बंद हो गई।